Today we are going to study binary arithmetics. Okay. So in the last class, we have discussed weighted and non-weighted codes. I think all of you can recall that. Okay, just wait for a minute. I'm just opening the PDF. Okay, so let me share the whiteboard first. Yes. So are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay. So in binary arithmetic, we have to simply study the binary addition, binary subtraction, binary multiplication, and division. Okay. So these are the very basic things. And I think most of you also know that how we can add two binary numbers, or we can add two binary. We can subtract two binary numbers. Okay. So we write that first. Binary ओके सो बाइनरी अरिथमेटिक्स में हमें पहला जो देखना है दैट इज एडिशन. ओके सो बाइनरी एडिशन में हम बेसिकली जो जानते हैं व्हाट इज दैट. सो ऑलवेज 0 प्लस 0 is always equal to 0. 0 plus 1 is also equal to 1 plus 0 is nothing but 1, and 1 plus 1, when this happens, this will be the 0, and there will be a carry of 1. Okay, so this is a carry part. Okay, so the result is 0 and the carry is 1. So you can easily differentiate some binary arithmetic and decimal arithmetics. Decimal arithmetics में जब हम 1 plus 1 करते हैं, that will be always equal to 2. But here in this case, 1 plus 1 is result is 0, and there will be a carry of 1. Okay. In the same way, when we do binary subtraction, binary subtraction. Okay, so binary subtraction करते हैं तो क्या होता है? We will have 0 minus 0 is always a 0. 1 minus 0 is equal to 1. 0 minus 1 is equal to what? The result will be 0 minus 1. जब करेंगे तो क्या करेंगे? The result will be 1, and there will be a borrow 1. Okay, so this is what, in this case, this is a borrow. Okay, and 1 minus 1, yes, obviously we can know that is equal to 0. Okay, so ये 1 0 minus 1 1 result आता है. And okay, how we can see that? Let us see some examples. Okay, so for binary addition, let us take a simple example of 4-bit number. Okay, so let us add 1 1
0 1 and 1 0 1 1. Okay, so we have to add these two numbers, these two binary numbers. So can anybody tell me that what is the decimal of this number and what is the decimal of this number? What is the decimal value of this above number? Okay, in red one. Can anybody tell me? 13 sir. ओके, तो 8, ये इसका जो वैल्यू हो गया वो गया 8 और ये 4 और चूंकि यहाँ 0 है तो 0 होगा। एंड सो मल्टीप्लायर क्या होता है? 8 4 2 और 1 ये मल्टीप्लायर होता है। ओके, 2 टू द पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है? 2 टू द पावर 0। ये एक्चुअली है 2 टू द पावर 1, ये एक्चुअली है 2 टू द पावर 2 और ये एक्चुअली है 2 टू द पावर 3। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसका जब एक्सपेंड करते हैं, सो वी विल हैव अ डेसिमल वैल्यू व्हिच इज द एडिशन ऑफ द पोजीशन वैल्यूज हुज वेयर द बिट इज 1। जहां पर 1 1 है वहां के वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और जहां 0 है वहां उसका मल्टीप्लायर 0 हो जाएगा। सो 8 4 12 और 1 13 आएगा यहाँ पर। और नीचे वाले के लिए कितना आएगा? 11। 4 वाला बिट 0 है तो 4 ऐड नहीं होगा, तो 8 8 2 और 1 ऐड होगा। ओके, सो 8 2 10 और 1 11। ओके, सो डेसिमल नंबर में हम रिजल्ट क्या जानते हैं? दोनों को अगर ऐड करें तो डेसिमल में 3 और 1 4 आना चाहिए और 1 और 1 2, मतलब 24 आंसर आना चाहिए। सो लेट अस सी दैट। ओके, सो मैं ऊपर वाला डिलीट करता हूँ क्योंकि वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी लिखने की। Okay, so 1 plus 1, this first bit, 1 plus 1, what we have written here, see here, 1 plus 1 is, the result is 0 and there is a carry. So 1 plus 1 is 0 and there is a carry. Okay, तो carry next part में हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब हम इसे ऐड करेंगे तो 1 plus 0 कितना होगा? 1 plus 0 is 1 and 1 1 क्या हो जाएगा? 0 और कैरी फिर से 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वी विल ऐड दिस 1 plus 1 0, कैरी 1 आएगा और इन दोनों का जो रिजल्ट आया 0 plus 0 is 0। ओके, नेक्स्ट इज 1 plus 1। ओके, 1 plus 1 मतलब हमें यहाँ पर एक कैरी मिलेगा। ओके, और 0 यहाँ पर 1 plus 1 0 आया और 0 plus 1 ऐड करेंगे तो वी विल हैव अ 1 और एक कैरी। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द डेसिमल ऑफ दिस नंबर। तो 24। यस, इसका जो प्लेस वैल्यू है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 16, क्योंकि हम क्या जानते हैं 1 2 4 8 16 32 ऐसे ऐसे मल्टीप्लायर बढ़ता है, तो ये 16 वाला पार्ट है और ये कितना वाला पार्ट है? 8 वाला, और बाकी के सारे 0 हैं। सो इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट 16 और 8 24। So we have also checked the answer, that the answer is right. Okay, so in this way we can add two binary numbers. Now let us take this same example and we will do binary subtraction also. Okay, so the data are 1 1 0 1 and 1 0 1 0. Okay, सो हमें इस बार बाइनरी सब्सट्रैक्शन करना है। तो इस बाइनरी सब्सट्रैक्शन को करने के पहले मैं आप लोगों से डेसिमल सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। दैट अगर हम एक डेसिमल नंबर लें, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लें यहाँ पर 38 है, और सॉरी 38 नहीं लिखकर हम यहाँ 34 लिखते हैं। ओके, 34 यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 25। ओके, तो डेसिमल में हम लोग सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो क्या करते हैं, मुझे कोई बताएंगे? यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे कोई बताएंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन करने के लिए, इस पर्टिकुलर सब्सट्रैक्शन को करने के लिए? 34 माइनस 25, तो पहला स्टेप क्या होगा? सर 3 से 1 4। यस, हम लोग वहां पर क्या करते हैं? बोरो लेते हैं ना, डेसिमल में भी हम लोग बोरो लेते हैं। कितना बोरो लेते हैं मुझे कोई बताएगा? 1। हाँ, कितना बोरो लेते हैं? सर 10 और 1 लेते हैं।
ओके 3:1 सर। 10 बोरो लेते हैं, 10, ऐसा नहीं कि 1 बोरो लेते हैं, हम 10 बोरो लेते हैं, तब ना यहाँ 14 हो जाता है, तब 14 में से 5 माइनस करते हैं तो 9 आता है ना। Yes, sir. क्योंकि लोग क्या जानते हैं कि Yes, sir. डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, 10 होता है ना, 10 होता है। तो जो भी नंबर सिस्टम होगा उतना ही हम बोरो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं या उससे कम भी नहीं। तो चूंकि उसका जो प्लेस, उसका जो मल्टीप्लाई या उसका जो रेशियो है, हम उसी रेशियो में ही बोरो करते हैं, ठीक है। तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो हम यहाँ 10 बोरो लेते हैं। 10 बोरो मतलब ये जो इस 4 और 3 का जो प्लेस वैल्यू है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू है 10⁻0 और यहाँ पर प्लेस वैल्यू है 10⁻1। तो दोनों का अगर रेशियो निकालें 10⁻1 by 10⁻0 तो वैल्यू कितना आएगा? 10:1. हाँ 10:1. मतलब 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो Yes, यानी sir. इन दोनों के प्लेस वैल्यूज में जो रेशियो का अंतर है वो 10 के रेशियो का अंतर है, ठीक है। तो हम 10 लेंगे यहाँ पर बोरो, ठीक। क्योंकि कोई भी दो, अगर कोई भी हम नंबर ले लें, मान ले 3 4 5 6 7 2 एक नंबर है, ओके। और इस नंबर में हम कहें तो हम क्या देखते हैं कि दो कंसेक्यूटिव, जो भी डिजिट्स होंगे, जो भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स होंगे, उनके बीच जो प्लेस वैल्यू का अंतर होगा या रेशियो होगा, वो कितने का रेशियो होगा? हमेशा 10 का ही रेशियो आएगा, इजंट इट? Yes, sir. इन द सेम वे, अच्छा तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं हम। तो 10 लेते हैं हम, ऐसे तो हम बचपन से देखते हैं, अरे यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से 1 लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मतलब 10 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 गया तो यहाँ 9 बचेगा। और चूंकि यहाँ से हमने 10 बोरो लिया, 10 मतलब क्या, इसके प्लेस वैल्यू में से, मतलब 30 में से 10 बोरो लिए, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखाएगा 30 + 4, ओके। सो 30 में से हमने 10 लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा फिर? 20 मतलब 20 का 2 20. बचेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ से 1 बोरो लिया तो यहाँ 2 बच गया। बट जो एक्चुअल केस है वो क्या होता है, हम 10 बोरो लेते हैं, और 10 बोरो लेते हैं तो यहाँ पर टोटल कितना बच जाता है? 20 मंथ्स, मींस वी विल हैव a 2 here, so 2 - 2 is 0. है ना। तो ऐसा हम करते हैं, बट बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम लोग कह देते हैं कि 1 बोरो लिए तो यहाँ 2 बचा, बट यहाँ माइनस करें तो ये आ गया, ठीक है। सो इन द सेम वे, जैसे हमने डेसिमल सिस्टम में 10 बोरो लिया और उस 10 को यहाँ पर रखा, तो मतलब इस 10 को अगर हम रखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 और 4 14 में से तब 5 गया तब 9 बचेगा, ठीक है। इन द सेम वे जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इन इस केस में हम कितना बोरो ले सकते हैं? यस, एनी आंसर? 2 सर। 2 बोरो लेंगे हम, 2. ऑब्वियसली नवाज, थैंक यू। सो हम हमेशा कितना बोरो लेंगे? तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, ठीक। और वो बोरो कितना लेंगे? 2 लेंगे। लेकिन हम लोग क्या बाइनरी में ऐसे 2 लिख सकते हैं? नो सर। क्योंकि हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं या बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ऐसा 2 नहीं लिख सकते हैं। तो इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो हमने 2 बाइनरी मतलब हमने 2 बोरो किया, उस 2 को हम लोग ऐसे 1 1 में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसे माइनस करें तो इस 1 में से ये 1 एक तो माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक 1 बचा, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ओह सॉरी, जस्ट वेट फॉर मिनट, यहाँ पर मैंने एक सर 1 1 तो 3 हो गया ना। एक मिनट, आप लोग भी यहाँ पर मुझे कुछ बोले नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी कितना है? 1. हमें बोरो लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब छोटा रहे सर ऊपर छोटा हो और आगे वाले नीचे बड़ा हो ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर बड़ा है, तो यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान हमें आगे होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से बोरो लेंगे, ठीक है। बोरो लेंगे तो क्या होगा? ऐसा होगा, 1 1 ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 1 0 और 1 है, चार बिट्स हमें दिख रहे हैं। तो 1 - 0 इज 1 and 1 - 1 is 0, isn't it?
तो रिजल्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ पर 1। ये क्लियर है सभी को? सर ये स्टेप रिपीट करिए वापस। ओके, लेट मी चेंज द कलर। हमने क्या किया, यहाँ से बोरो लिया, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम 2 बोरो लेंगे और उस 2 को हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब तो सिंपल है, अब हमारे पास 1 है और जीरोस है, तो हम हमारे यहाँ पर टोटल हमें क्या करना है, ये माइनस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि माइनस में 1 1 है और ऊपर पॉजिटिव में 2 1 है, तो यहाँ टोटल कितना 1 बचेगा रिजल्टेंट? 1 सर, 1 1 बचेगा। यस, 1 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल तीन 1s हैं। 3 1 में से 1 1 का साइन नेगेटिव है, बाकी 2 1 का साइन पॉजिटिव है, तो 1 1 में से 1 1 कैंसिल होगा, तो ऑब्वियसली 1 1 बचेगा। अब यहाँ पर जहां हमने बोरो लिया था, जहां से इस 1 से हमने बोरो लिया था, तो यहाँ बचेगा क्या? अब इस पोजीशन पर क्या बचेगा? 0 सर। 0. ऑब्वियसली 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है 0 से लेकर 9 तक। तो अगर यहाँ से 10 रेशियो कॉमन आ रहा है, मतलब एक अगर बोरो ले रहे हैं, तो यहाँ पर उससे एक कम वैल्यू बचेगा। तो 1 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 0 ही आएगा। तो 0 माइनस 1 इज 0 माइनस 0 इज 0। ओके, एंड 1 माइनस 1, लास्ट जो बचा 1 माइनस 1 इज 0। 0. ओके, सो हम लोग जानते हैं ये किसका डेसिमल है? 13 का डेसिमल है। तो 30, और ये किसका डेसिमल है? 10, 11. 11 का डेसिमल है। रिजल्ट कितना आया है? 10 है ना सर? अच्छा जी, 10 है। 10 होगा. ओके, 10 है ये। तो रिजल्ट कितना आया? 3. माइनस किए तो 3 आया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये किसका बाइनरी है? 0 0 1 1, 3 का ही बाइनरी। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन डू बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो बाइनरी एडिशन में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है बाइनरी सब्सट्रैक्शन करने में ही, क्योंकि उस केस में बोरो लेने का जो सिस्टम है वहां पर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि यह किस तरह से बोरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक ही बोरो का केस मिला। लेट अस टेक वन अदर एग्जांपल, देयर यू कैन गेट सम मोर डिफिकल्टी। सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, you have to tell me the answer. 1 1 1 0 0 1 0, and the other number is 1 0 1 1 0 1. Okay, now tell me the answer. You have to do binary subtraction. You have to do binary subtraction. Please tell me the answer. Has anybody got the answer? Okay, so anybody? Okay, let me Sir, go. 5. Okay. Mawaz has told 5. Okay, so let us check that. So what we will do, यहाँ पर पहला बिट जो दे रहा हूँ, let me change the color. So here it is a 0. यहाँ पर 0 है और इसके नीचे 1 है, so we have to take borrow. So here we will have 2 1s here. So the result will be 1 minus 0 is 1 and 1 minus 1 is 0. So resultant will be 1, isn't it? यहाँ से हमने borrow ले लिया already, तो यहाँ पर result क्या बचेगा? 0. So 0 minus 0 is 0. No issue. Now here we have a 0 and here we have a 1. Here we have a 0 and here we have a 1. So we need a borrow here. Okay, so but here it is also a 0. यहाँ भी 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें borrow यहाँ से लेना पड़ेगा।
ओके, ये 1 में से बोरो लेना होगा, तो यहाँ से हम बोरो लिए 1 और 1, ठीक है। अभी ये 1 है, ये वाला जो 1 है, इस 1 से हम यहाँ बोरो लेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बचेगा, 1 में से 1 गया, सो रिजल्ट विल बी 1। और यहाँ पर ऑलरेडी इस 1 से बोरो आ चुका है, तो ये जो 1 होगा वो 0 हो गया, मीन्स ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है, ये 1 0 हो गया, ठीक। और अभी हमारे पास बचा ये 1, ये वाला 0 और ये वाला 1, ओके। सो what should be the result here? Result should be a 0. Yes. अब यहाँ इस 1 से हमने ऑलरेडी यहाँ पर बोरो लिया हुआ है, so 0 minus 0 is 0 and here it should be a 0. So who among you have got this answer? Please say yes, no. Yes, sir. Okay, Rohan. Anybody else who has got this answer? In this? विष्णु, ओके। और किसका आंसर आया ये? यस सर। अच्छा, ओके। सर रिपीट कीजिए ना, कुछ समझ में नहीं आया। ओके, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिजिट है, ओके, सबसे पहला जो डिजिट है, उस पहले डिजिट में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 0 है और ये 1 है। 0 1 है तो हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से एक बोरो लिया। जब हमने यहाँ से एक बोरो लिया तो बोरो क्या होगा, बोरो 2 लेंगे, तो हम यहाँ 1 और 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट 1 आया है। यहाँ पर किसी को डाउट है? यहाँ पर रिजल्ट 1 सर। किसी को डाउट है यहाँ पर? सर हमें डाउट है कि जो सर फर्स्ट में जो 1 1 0 कर दिया, वो कैसे 0 किए सर, वो हमें डाउट है। फर्स्ट में मतलब कहाँ पर? लेफ्ट साइड माइनस लगाए उधर दिखे सर। अच्छा, माइनस लगाए इधर से। यस सर, 1 1 पर आया ना सर, तो 1 1 0 कैसे हो गया जब उधर 1 1 1 हो रहा है सर? अरे भाई, कौन बोल रहे हो? विष्णु पूछ रहे हो? यस सर, हमको ये नहीं समझ में आया सर। ओके विष्णु, देखो विष्णु, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 1 था, 1 से हमने यहाँ एक बोरो लिया है, ठीक है। तो बोरो हम क्या लेते हैं, ऐसा बोरो लेते हैं ना, ये क्लियर है। यहाँ पर हम 2 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो यहाँ से हम 2 बोरो लेंगे, तो यहाँ 1 1 हमने लिखा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 1 जो है, इस 1 का साइन क्या है, माइनस है, और इन दोनों 1 का साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो 2 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा? 1 नहीं बचेगा। यस सर 2 बोर लिए, वो भी समझाइए सर, वो भी नहीं समझ आया। ये बोरो वाली बात तो जब सबसेक्शन जब हम लोग शुरू किए वहीं पर पूछना चाहिए था, जब ये समझ में नहीं आया तो। डेसिमल नंबर सिस्टम में 5 में से 8 माइनस कैसे करते हैं? एक बोरो लेंगे। बोरो यहाँ लेते हैं, कितना बोरो लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? डेसिमल नंबर सिस्टम में बोरो हम लोग लेते हैं 10 बोरो लेते हैं, और उस 10 को अगर हम ऐसे करके लिखें तो ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हमारे पास 10 यानी 9 तक अवेलेबल है, तो 10 मतलब 15 हो जाता है ना यहाँ पर। इन द सेम वे यस सर, यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 बोरो लेते हैं। उसी 2 को, चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हम 2 नहीं लिख सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास 0 और 1 ही सिर्फ अवेलेबल है। इसलिए हमने उस 2 को हमने 1 और 1 के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको ये समझना होगा कि आपको जस्ट जो आप बचपन से जो आप नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हो, उसके कंपैरिजन के थ्रू ही आपको समझना होगा। लेकिन अभी आप याद रखने के लिए करो, और अगर अभी भी नहीं समझ में आती है तो आप बाद में हमसे मिलो, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बहुत ज्यादा इसी छोटी सी चीज को डिस्कस करते रहेंगे तो समय उतना नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके सर।
ठीक है ना विष्णु, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप अगर नहीं समझ में आ रही तो अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट कर सकते हो, उससे बात कर लोगे बाद में, ठीक है ना। ओके ये बेसिक सी बात है यहाँ पर। क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो हम दो बोरो लेते हैं और दो को हम वन वन के फॉर्म में लिखते हैं, 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक 1 माइनस में है और 2 1 प्लस में है, तो हम एक माइनस हो गया तो एक ही 1 बचेगा, सिर्फ एक ही 1 बचेगा, तो वो 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने बोरो ले लिया था तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, अभी ये 0 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा क्योंकि बोरो हमने ले लिया यहाँ पर, तो 0 माइनस 0 0 होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि यहाँ ये भी बिट 0 है और ये भी 0 है, तो हमें बोरो इस 1 से लेना पड़ रहा है। तो इस 1 से बोरो लेंगे तो यहाँ 2 बोरो लेंगे, ये 1 और ये 1। अब इसमें से इस 1 में से एक बोरो अब यहाँ लेंगे तो ये 1 और ये 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से देखें, ये 1 में से ये 1 कैंसिल, तो बचा सिर्फ एक 1, तो यहाँ एक 1 आंसर आ गया। और चूंकि ये 1 ऑलरेडी बोरो में जा चुका है तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला 1 बचा है, और ये 1 और ये 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 0 बचा। इस 1 में से हमने ऑलरेडी बोरो लिया हुआ है, सो यहाँ 0 होगा, सो 0 माइनस 0 इज अ 0 एंड 1 माइनस 1 इज अ 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। इसका डेसिमल बताएंगे मुझे कोई, इसका डेसिमल कोई बताएंगे मुझे? 1 2 4 8 16 32, तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, कितना हो गया ये? 32 16 48 और 2 50। ओके, इसका कितना आएगा? इसमें कितना आएगा? 45 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये सभी को क्लियर है? यस सर। तो 32 और 8 40, 4 44 और 1 45, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या 5 आ रहा है, और यहाँ पर जो बाइनरी आया है वो भी 0 0 0 1 0 1। ये किसका बाइनरी है? ये 5 का बाइनरी है। तो रिजल्ट हमारा सही है, ठीक है। So let us move to binary multiplication. Okay. Binary multiplication. Okay. सिंपल है, जैसा हम लोग डेसिमल नंबर से डेसिमल में करते थे मल्टीप्लिकेशन, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। लेट अस टेक वन स्मॉल एग्जांपल एज 1 1 0 1 and 1 1 0. Okay, so we have to multiply these two numbers. So binary डेसिमल में हम लोग क्या करते थे? डेसिमल में मान लें हमारे पास 234 है और यहाँ 52 है, तो क्या करते थे? 8 6 4, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करके यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 5 और 20, हाथ में रहा 2, 15 और 2 17, 10 2 12, ऐसा लिखते हैं ना। 6, फिर सभी को ऐड करते हैं, 8 6 1 3 और 1। इज इट राइट? चेक कर लोगे, मैंने ऐसे आर्बिट्ररी एग्जांपल एक ले लिया। इन डेसिमल नंबर सिस्टम में हम ऐसा करते हैं। इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी वही प्रोसेस करेंगे। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई। ओके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले कि 0 इंटू 0 हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 इंटू 1 हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। 1 इंटू 0 क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। और 1 इंटू 1 हमेशा क्या आएगा? इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल रूल है जो कि हम डेसिमल में भी देख सकते हैं, सेम ही रूल होता है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिजिट्स को, 4 बिट्स को। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? इस 0 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट क्या आएगा? कि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। सभी को ये पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डाटा है वही सेम डाटा ही रिपीट होगा, बट देयर इज अ शिफ्ट। यहाँ पर एक बिट शिफ्ट करके हम लिखते हैं, ठीक है। ये बचपन से भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन देखे हो। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1
0 1 और 1 होगा क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो हम फिर से 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 2 शिफ्टेड बिट्स होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 और 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है एडिशन का, तो हम सिंपली एडिशन करें। ओके, सो 0 यानी कि 0 आएगा, 0 1 रिजल्ट क्या आएगा 1, 0 0 1 रिजल्ट क्या आएगा 1, 0 1 0 रिजल्ट आएगा 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 और एक यहाँ कैरी आएगा। ओके, carry 1 plus 1 is 0 again and the result should be a big 1. Okay, so you can check this, that 1101 is the decimal of which number? 13. 13 sir. 13. And 110 is the decimal of which number? 6. 6. 6. तो कितना होता है रिजल्ट अगर मल्टीप्लाई करें तो 78 sir. 78. So convert this number into decimal. 1 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 to the power 6 कितना हो जाएगा ये 2 to the power 6 sir. हाँ प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया ये 2 to the power 6 कितना होगा 64 sir. 64. 64। तो 64 और 8 कितना हो गया 64 और 8 हो गया 72 और 4 76 और 2 78। So this is the decimal of this is the 78, the decimal of this resultant. So we can see that the answer is same. So in this way we can do a multiplication in a very simple way. So whatever the numbers we have discussed here, all in all the numbers there we have not assumed or we have not taken this sign bit. Okay, so now we have to see. Okay, so before going there I just want to give you a brief idea about binary division also. I think all of you know this, but I have to go through all these things once at least. Okay, so बाइनरी डिवीजन, जैसा कि डिवीजन हम सिंपली करते हैं वैसे ही सेम अगर डिवीजन करें लाइक 1 1 0 1 1 okay divided with some other number, that is let it be 1 1. Okay, so how we can do that? Very simple, we already know these processes. So yes, how many times it will go? 1 times अगर multiply करेंगे तो we will have a 1 1. Resultant will be a 0, लेकिन एक बिट जा रहे हैं लेकिन आंसर नहीं जाएगा, so we will have put a 0 and we have to get a 1 here. अभी भी नहीं लगेगा, so we have to put a 0 again. We will put a 1 here. Now we will put a 1 here also and we will get 1 1. Okay, so in this way we will get this quotient. Okay, now you can multiply this 1 0 0 1 with 1 1. You can see whether that you are getting that answer or not. So this is the quotient. ये जो है वो क्या है? This is the quotient and this is what? This is divisor. So when we should multiply this quotient with the divisor, then we will get this number. So let us check that 1001 is getting multiplied with 1 1. So 1001 we are multiplying this, and again we have to multiply this from this one. So we have 1001. Let us check that 11011. Okay, so I think all of you can see that the result whatever we have got is correct one. Okay, so I have taken a very simple the very simple examples for binary division.
So all these things you know, but I have to revise that, and I have to refresh all these things. Okay, so now we will move to, we have 3 more minutes. Okay, so let us go to the next page. I think whatever I have discussed is clear to you all. Yes, sir. Okay, thank you. So next, what we have to go is the, because these are whatever I've discussed are the very simplest things in this course. So you have to go through very fastly, because we do not have very too much time. So yes, signed binary numbers. ओके, साइंड बाइनरी नंबर्स. साइंड बाइनरी नंबर्स कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग नंबर्स, बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एक बिट को अगर हम साइंड बाइनरी नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो एक बिट होगा, दैट वन बिट इज डेडिकेटेड फॉर द साइन बिट. ओके, साइंड बाइनरी नंबर्स अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा कि MSB is dedicated to sign bit. Okay? तो MSB होगा वो डेडिकेटेड टू साइन बिट होगा, और इसका मतलब है कि जब 0 होगा MSB, तो वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 होगा तो वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो MSB मैंने क्या कहा कि साइन बाइनरी नंबर की जब हम बात करेंगे, तो MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट either 0 or 1 होगा, and based on that we can classify that number into positive and negative number. अगर वो MSB 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव कहलाएगा. यही कन्वेंशन है, यही इस्तेमाल होता है. ओके, और 1 होगा तो वो नंबर नेगेटिव होगा. लाइक जैसे मैं एक साइन बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ 01101, तो कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाट इज दिस नंबर इन साइन बाइनरी नंबर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन डेसिमल? So this number is a positive number or a negative number? Positive, sir. Yes, this is a positive number, because I have already told you that MSB